Hey everyone, in this video I would like to discuss today's lead code contest, that is weekly contest 513. So let's start with the first problem. Our first problem is maximize pair strength using GCD. So you are given an integer array nums. Choose exactly one pair of distinct indices I and j. The strength of the pair is defined as nums of I into nums of j divided by square of GCD of nums of I comma nums of j. You need to return the maximum strength over all possible pairs. The term GCD of A comma B denotes the greatest common divisor of A and B. Okay, so the problem statement is pretty simple. You are given an array nums and you need to, for each pair, you will calculate this value, right? That is multiplication of the nums of I into nums of j divided by square of their GCD. Now you need to return the maximum value over all pairs, right? So constraints are quite low, that is n square solution will work here. So what you will do is you will iterate over each pair and you will calculate this value and you will take the maximum value across all pairs, right? So let's see the code also. We have done the same thing here. We are iterating over all pairs I comma j and we are finding out GCD of nums of I comma nums of j, and then we are taking the maximum of answer comma nums of I into nums of j divided by GCD square. Means we have divided 2 times by GCD, means we have divided by GCD square to this value. Okay, and at the end we will just return the answer, that is the maximum value across all pairs. Okay, so this was it for this first problem. Let's move to the second problem. Okay, so this is our second problem. Count subarrays with even odd ratio 1. Okay, in this problem you are given an integer array nums with two integers a and b. For a subarray, let x be the number of even elements, y be the number of odd elements. The ratio of even to odd numbers in a subarray is defined as x divided by y, where the ratio is compared by its exact rational value. A subarray is considered valid if y is greater than 0 and x rational y should be less than equals to a rational b. So this simply means that the value of x divided by y means double value of x divided by y should be less than equals to double value of a divided by y. You understand double, right? Double is the decimal value, okay, where fractions are also considered. So you need to return the number of valid subarray in nums. A subarray is a contiguous non-empty sequence of elements within an array. Okay, so let's see how you can solve this. So constraints on this problem is also quite low, that is n number of elements are order of 1000, so your n square solution will work here. So what you will do here is you will iterate over each subarray, right? And for each subarray you will find this value x divided by y, right? It's not an integer. Please note that this is not a integer division. This is a decimal division. Okay, so you need to consider the whole value of x divided by y, right, including fractions. So for you will iterate over each subarray and you will calculate this value x divided by y. If this value is less than equals to a divided by b for this subarray, then you will consider this subarray to be a valid subarray.
and you will increment your answer, right? So this is how you can solve this problem. I don't think we do need to take any sample test cases. It is pretty simple. It is pretty straightforward. So let's see the code. So what we have done here is, so let's say we took this variable threshold, right? That is a less than b. What is threshold? Threshold is the maximum value maximum value x divided by y can take, right? So for each subarray, your x divided by y should be less than or equals to threshold, right? So here we have defined this threshold, a divided by b, and we take a variable answer which will store the number of valid subarrays, and here we are iterating over each subarray, right? So for starting point of our current subarray is I, index I, and end index is j, right? So let's say when you visit index j, you will check that the corresponding, if the corresponding integer is even, then you will increment your x by 1, otherwise you will increment your y by 1. Okay, if your y is greater than 0, then what you will check? You will check the current value of x divided by y, right? So if your current is less than equals to threshold, it means it is a valid subarray from I to j. So you will increment your answer by 1. At the end, just return your answer. Okay, so this is how you can solve this problem. Let's move to the third problem. Third problem is count of unfinished tasks after each shift. So in this problem, you are given two integer arrays, tasks and shifts. Task of I represents the time required to complete the ith task. Shift of j represents the amount of time available during the jth shift. The task must be processed in order from left to right. Carryover: if a task is not completed during a shift, processing continues from the same point in that task during the next shift. Restart: it is that if all tasks are completed during a shift, the shift ends immediately. Any unused time in that shift is discarded and the next shift begins again from task 0. Now a task is unfinished if it has not been fully completed. This includes a task that is currently in progress. You need to return an integer answer where answer of j is the number of unfinished tasks immediately after the jth shift. So the problem statement is pretty straightforward. If you are not able to still understand, let me reiterate it. So you are given two integer arrays, task and shift. Okay, task of I will represent the time required to complete ith task. Okay, and now what you need to do is, so let's say you have some number of shift. Okay, and each shift you are given an allotted time, right? That in this particular shift, ith shift, you will only work shift of I seconds. Okay, only this time is allowed you for you to work. Now after each shift, what you need to tell is the number of unfinished tasks, right? Okay, at some point of time, let's say you have completed all your tasks, right? Then you will, in from the next shift onwards, you will start from the first task itself. Okay, now this is your problem. You need to return the answer array where answer of j represents the number of unfinished tasks after jth shift. If you take an example of this first sample test case, so let's take this example.
Yes. So this is the given arrays we are having. Okay, leave it. Now you are given this task array, right, and this shift array. Now what you will do is, for let's iterate over the shift. Initially you are starting from I equals to 1, first task. Okay, and now let's iterate over the shifts, right? Your let's iterate over shift, first shift. Okay, now in the first shift you have 9 seconds. Okay, so you will see that in 9 seconds how many tasks you can do. Can you do first task? Yes, you can do first task. Can you do second task? 4 plus 5. Yes, 4 plus 5. 5 is 4 plus 1. 5 is less than equals to 9. Okay, so you can do second task. Can you do third task? 4 plus 4, 8 and 9. 9 is less than equals to 9. Okay, so it means that you can do all of the 3 tasks, right? And this is equals to t. T is the time in current shift. So it means that in the first shift you will be able to do all of the tasks. So what are the number of unfinished tasks? What are the number of unfinished tasks? This is total number of tasks, that is 3, minus completed task, that is I equals to 3, right? Right now your I equals to 3, right? You have completed 3 tasks, right, in this shift itself. So number of unfinished tasks after first shift is 0, right? So okay, so this will be your answer for I equals to 1, that is first shift. Now as you have completed all of the tasks after this shift, now again you will reassign I equals to 1, that is from next shift onwards you will start from I equals to 1. Okay, so for the second shift you have t equals to 1, means you have only 1 second. Now can you do first task in the second shift? Yes, you can do, because 1 is less than equals to t. Can you do second task? 4 plus 5 is greater than t. It means you cannot do second task. So in the first shift you are only able to complete the first task. Okay, so the number of unfinished tasks, are 3 minus 1, that is 2, right? So 2 will be answer for second shift, and you will assign I equals to 2 because first task is completed. Let's move to the third shift now. So for the third shift you have 4, t equals to 4, right? 4 seconds. Now what you will do, you can say that in 4 seconds you can complete the second task. You cannot complete both of second and third task, right? You will only able to complete second task. So unfinished, the number of unfinished tasks are 3 minus 2, that is 1. Okay, so your answer array will be 0, 2, 1. So this will be your answer array for first test case. Let's also take another sample test case, this one. Okay, so so here you can see that the length of task array and shift array can be different, right? They are independent. So let's do the same thing.
start from first task and let's iterate over the shifts. For first shift you have 3 seconds. So can you complete the first task in 3 seconds? Let's check. Is 4 less than equals to t? No, this is not true. 4 is greater than 3. So it means that you cannot complete the first task, right? So let's also take another variable, progress, right? Progress, what does progress store is? Progress will store that what is the progress on ith task, means how many seconds you have spent on the ith task, right? Because in the problem statement itself it is given that if a task is not completed during a shift, processing continues from the same point in that task during the next shift. Okay, so you should also store the progress of the current task. So initially the progress is 0 because we have not started working. So in the first shift you will see that you cannot complete the first task because 4 is greater than 3. So what you will do is you will increment after the first task, your task number will remain same and you will increase your progress by 3 because you have worked 3 seconds for the first task. And your answer for this will be, what are the number of unfinished tasks? What are the number of unfinished tasks? Number of unfinished tasks are 2 minus 0, that is 2, because we have not completed any task here. Now let's go to the second shift. Here we have t equals to 6. Now you have already made a progress of 3 seconds on the first task, so only 1 second is remaining, right, in the first task for it to be completed. So 1 second is required to complete first task because 3 we have already progressed in the first shift. Now for the second task it takes 2 seconds, this is 3, and we can see that 3 is less than equals to t, then it means that in this shift we can complete both of these tasks, first and second, right? So number of unfinished tasks are 2 minus 2, that is 0. Okay, and as we have completed all of the tasks, assign I equals to 1 and progress equals to 0, right? Because in the problem statement it is given that if you have completed all of the tasks, you will start from the first task from the next shift and your progress will be 0, right? So let's go to the third shift, that is in third shift you have t equals to 1. Now what you will do is you will start from the first task and you have it, the first task needs 4 seconds, right? So there will be a progress of 1, right? And you cannot complete the first task because 4 is greater than 1, right? I will remain 1. Now what are the number of unfinished tasks after third shift? That is 2 minus 0 because 0 tasks are completed yet. So 2. Now what is the answer for this? After processing all of the shifts, what is the answer corresponding to each shift? Answer is, for first shift our answer was 2, for second shift our answer was 0, for third shift also our answer is 2. So this is our answer for this sample test case, 202. Okay, 202. Yes, so this is how we can solve this sample test cases. I am sure that you are now able to understand this problem statement clearly, right? Now let's go to the actual problem, how you will solve this problem for large constraints, right? So if you think about, if you don't think about the constraints, then you can say that yes, we can solve this problem.
how you will solve this problem? You can iterate over all of the shifts, right? Iterate over the shifts. Iterate over the shifts. Okay, now let's say you are at the current shift I. Currently, let's say you are at shift I. Okay, now, and you are also storing uh, your task, current task that is unfinished, and also progress on this current task. And initially you will assign I equals to 1 because you will start from the first task, and p equals to 0 as you have not made any progress on this current task. Okay, now you are at the shift I, right? So how you will process it? You will iterate over inside this loop. What you will do is you will just iterate over the task, right? फ्रॉम आई से स्टार्ट करोगे ऑब्वियसली आप, और आप क्या करोगे, इसमें से आप इटरेट करते जाओगे इन टास्क पर अनटिल या तो आपका आई ग्रेटर देन एन हो जाए, मतलब आपने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए हो, या फिर दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा कि आपका जो अमाउंट द टाइम स्पेंट, वो जो टाइम स्पेंट है, ये जो टी लेट्स से टी टाइम आपका है आई एस शिफ्ट में, सो आप इटरेट करते जाओगे टास्क पर जब तक या तो आपका टाइम, जो टाइम कंज्यूम्ड है वो इससे एक्सीड कर जाए, है ना, गिवन टाइम इन शिफ्ट आई, या फिर आपका आई ग्रेटर देन एन हो जाए, इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड ऑल टास्क। तो आप कोई भी दोनों में से कोई भी कंडीशन ब्रेक हो जाए तो उधर आप इस लूप को ब्रेक कर दोगे और आप बाहर निकलोगे इस लूप से, तो आपको पता लगेगा कि ओके हाउ मैनी लेट्स से आई जो होगा, आपके रिमेनिंग टास्क कितने होंगे, रिमेनिंग टास्क होंगे एन, रिमेनिंग टास्क होंगे आपके एन माइनस आई, राइट। ओके, सो these are your remaining tasks after shift I. बट अगर आप नोटिस करो एक चीज, लेट्स से n इज द लेंथ ऑफ द टास्क अरे एंड लेट्स से m इज द लेंथ ऑफ शिफ्ट अरे, देन इस केस में ये हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हो गया। इस केस में आपका टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ n इंटू एम, but as you can see that n into m is not allowed here, 10 to the power 5 into 10 to the power 5 is not allowed here, so you will have to optimize this solution, right? This will not work, you will have to optimize this part. So you will iterate over the shift, you need to optimize this inner part, right? आपको कंप्लीट ट्रैवल नहीं करना, आपको ये ऑर्डर ऑफ 1 या फिर ऑर्डर ऑफ log n में फाइंड करना है। सो लेट्स ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट। आप how you can fastly find out the number of tasks which can be completed in the IH shift। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप ये करोगे कि आप प्रीफिक्स सम स्टोर कर लो। ओके, प्रीफिक्स सम ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, पहले आप प्रीफिक्स सम फाइंड करो। प्रीफिक्स ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रीफिक्स ऑफ आई रिप्रेजेंट करेगा योर basically sum of time required for first, it will store, prefix of I will be sum of time required to complete first I task। okay,
सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीफिक्स ऑफ आई? प्रीफिक्स ऑफ आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट आई टास्क। ये आप इजी है, निकाल ही लोगे। प्रीफिक्स ऑफ आई इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन प्लस टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट करंट टास्क। आपने एक बार प्रीफिक्स सम अरे निकाल ली। अब मुझे बताओ कि मान लेते हैं कि करंट शिफ्ट, आप शिफ्ट आई को प्रोसेस कर रहे हो, जे ले लेते हैं, है ना, आई हम पॉइंटर लेंगे करस्पॉन्डिंग टू टास्क। सो लेट्स से आप करंटली शिफ्ट आई पर हो, आई एस शिफ्ट पर हो, और इसके लिए टाइम क्या है, इस शिफ्ट में आपके पास टाइम है शिफ्ट ऑफ आई। अब मुझे आप बताओ जल्दी से फाइंड करके कि आप कैसे ऑर्डर ऑफ log n में फाइंड करोगे। और आपको ये भी पता है आई, आई क्या है, द कर इसको जे ले लेते हैं ना, इसको जे ले लेते हैं, राइट, क्योंकि हमने आई पॉइंटर लिया था करस्पॉन्डिंग टू द आई एट टास्क, राइट, विच इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड, विच इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड। सो आई आपको पास पता है कि करंटली आप आई एथ टास्क पर हो, और इस टास्क पर आपकी पी प्रोग्रेस हो गई है, मीन्स पी टाइम आपने स्पेंड कर दिया है आई एथ टास्क पर ऑलरेडी। अब मुझे आप जे आई के बाद, आई के बाद एक जे टास्क बताओ सच दैट जे अनफिनिश्ड होना चाहिए, राइट, और जे अनफिनिश्ड होना चाहिए, और आई से लेकर आई, आई प्लस वन, आई प्लस टू, अप टू जे माइनस वन, ये सारे टास्क हैं, दीज मस्ट बी कंप्लीटेड। ओके, सो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ जे? ओके, आप बोलोगे कि हाँ बता देंगे। कैसे बताएंगे? हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च लगाते हैं, राइट। अब आप एक चीज़ नोटिस कर ही सकते हो कि भाई जितना आप जे को आगे बढ़ाते जाओगे, जे को बढ़ाते जाओगे, आपका टाइम रिक्वायर्ड इंक्रीज करता जाएगा, राइट। सो इनिशियली कुछ टाइम तक आपका क्या रहेगा कि कुछ टाइम तक आपका क्या रहेगा, जो रिक्वायर्ड टाइम है टू कंप्लीट दीज टास्क, वो ओबियसली कम होगा, टी से कम होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका जो रिक्वायर्ड टाइम है वो ग्रेटर देन टी हो जाएगा टू कंप्लीट द टास्क जे। आप आई से स्टार्ट करोगे, राइट, ओबियसली आई से स्टार्ट करोगे कंप्लीट करना, आप बढ़ते जाओगे, आपका जो रिक्वायर्ड टाइम है वो टी से कम रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा एट पोजिशन जे सच दैट द रिक्वायर्ड टाइम टू कंप्लीट ऑल ऑफ दिस टास्क फ्रॉम आई टू जे वो एक्सीड कर जाएगा आपका टी से, राइट। वहाँ पे आप रुक जाओगे, और उससे आगे आप नोटिस करोगे जितने भी आपके टास्क बचेंगे आप आगे बढ़ते जाओगे, उसमें रिक्वायर्ड टाइम जो है वो ऑब्वियसली बढ़ता ही जाएगा, राइट। सो इससे आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी उसके लिए आपको जीरो मिलता जाएगा, मतलब फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है कि आपका रिक्वायर्ड टाइम है वो ज़्यादा हो गया टी से, और इससे पहले ट्रू मिलता जाएगा आपको, कि मतलब ट्रू का मतलब रिक्वायर्ड टाइम टू कंप्लीट दीज टास्क इज लेस देन इक्वल्स टू टी। ओके, सो अब ये वाला पैटर्न जहाँ भी दिख जाता है, राइट, सो आप उस पर बाइनरी सर्च लगा सकते हो। तो अब इस पे लगा दीजिए बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च आप किस लिए लगा रहे हो? बाइनरी सर्च वी आर अप्लाइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जे सच दैट we can complete the task from I to j minus 1 and task j is still unfinished. ओके, सो इसके लिए आप यही करोगे कि प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लोगे I to j minus 1 का। I to j minus 1 का प्रीफिक्स सम क्या होगा? प्रीफिक्स ऑफ j minus 1 माइनस प्रीफिक्स ऑफ I, राइट, prefix of I if it is less than equals to t plus p,
हमने प्लस पी क्यों किया? क्योंकि आपने ith टाइम पर p टाइम ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है, राइट? ith टास्क पर p टाइम ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है, तो आप इसमें p ऐड कर दोगे कि p तो भाई हमने ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है। सो अगर ये जो टाइम रिक्वायर्ड है, इफ इट इज लेस देन इक्वल्स टू टी प्लस पी, देन आपका आंसर ट्रू हो जाएगा, राइट? आंसर विल बी ट्रू। अदरवाइज आपका आंसर जीरो हो जाएगा इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन टी प्लस पी। ओके, सो इस पर आप बाइनरी सर्च से, विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ जे, और आप जेथ शिफ्ट के लिए आप आंसर फाइंड कर लोगे। अगर मान लेते हैं कि जे एक्सीड कर जाता है, कि भाई जे इक्वल्स टू एन प्लस वन मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए फ्रॉम आई टू एन। इस केस में आप आई को अपडेट कर दोगे 1 से और प्रोग्रेस को 0 से, है ना, क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट आपकी इनिशियल फर्स्ट टास्क से स्टार्ट होगी, राइट? Okay, so this is how you can solve this problem with the help of binary search. Let's also see the code if you are still not able to get the solution. So solution is pretty straightforward. What we have done is n and m is the size of task and shift array, okay, and we have calculated the prefix sum array, right? Prefix of I represents the total time required to complete first I task. Now this is the function next unfinished task, right? So before coming to this function, let's see what we are doing here. We are doing the same thing. We took this answer vector, which will store the answer corresponding to each shift, right? And we have taken these two variables, I equals to 1, that will be pointer corresponding to the task, current task, and progress will keep the amount of time we have already spent on ith task in the previous shift. Okay, so initialize it with 1 and 0. Now we are iterating over the shift. For current shift you have t amount of seconds to complete this current shift. Okay, so now what we want here is we want to find the value of j. J is the next unfinished task after I, right? जे की वैल्यू क्या है कि यू हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ द टास्क फ्रॉम आई प्लस वन, आई प्लस टू अप टू जे माइनस वन, एंड जेथ टास्क इज स्टिल अनफिनिश्ड. नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ जे. We have created this function next unfinished task, right? Or the input value it is having is I, right, the current task, and time t, which we have in this task, in this current shift. Okay, or you can see that here we are passing t plus progress, right? Because progress amount of time we have already spent on ith task. Okay, so here we will do binary search, right? The same logic which we have already learned in this solution. So let's apply the binary search here. Initialize x left variable with I minus 1 and y variable with n plus 1. Okay, and we will keep on doing until y minus x is greater than 1. Okay, so let's find the mid value. If prefix sum of mid minus prefix of I minus 1, if it is greater than time, okay, if it is greater than time, it means that you cannot complete all of the task from I to mid. Then it means that you will just assign your y equals to mid, right? Just shift the right variable. Else case is when this is less than equals to time. It means that you can complete all of the tasks from I to mid. Okay, in this case you will just shift your left variable to mid. In the end, what you will see, in the end you will see that what does x represent? X represents from you are able to complete all of the tasks from I to x. And what does y represent?
y represent that you are able to complete all of the tasks from I to y minus 1, right, and y is still unfinished, right. So you will, and here in this function itself, we have, what do we want is, we want that the next unfinished task, so we will just return y. It means all of the tasks from 1 to y minus 1 are completed and y is still unfinished. Okay, so we got the value of j. Now what you will do is, you will just insert n plus 1 minus j. It means the number of remaining tasks. Okay, now here just update the value of I and progress. If j equals to n plus 1 means we have completed all of the tasks. In this case, just start from the first task and progress equals to 0. Otherwise, we have still not completed all of the tasks. It means that you will calculate the progress. Your progress will be, progress on jth task will be total time, that is progress plus p, minus the time consumed in task, the minus the time consumed in completing the task from I to j minus 1, right. This is how we can calculate the progress on the jth task, and just assign I equals to j. At the end, just return the answer. Okay, so this is how we can solve this problem. Let's move to the fourth problem of today's contest. Okay, so the fourth problem is count subarrays with even odd ratio 2. This is the same problem. Exactly, the problem description is exactly same as the second problem. The only difference is the constraints. In this problem, what we had done is, we have just iterated over each subarray, right, and found whether the current subarray is valid or not. And this we were able to do because the constraints allow us the solution of order of n square, right. But here you will see that the value of n is order of 10 to the power 5, so n square is not allowed here. So we will have to optimize our solution, right. Okay, so as you have read this problem statement earlier also, let's see how we can solve this problem for larger values of n, how we can basically optimize our order of n square solution. So let's see that. Okay, so we will directly start from optimization, because we have already seen the brute force, that is order of n square solution, in second problem, right. So in second problem, in problem 2 we had order of n square solution, right. Now we will optimize it. We will have to optimize this solution. इस प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे थे, we were iterating over I from 1 to n, and inside this we were iterating over for I belongs to 1 to n, and inside this we were iterating for j equals to I to n, right. And what we were doing is, we were having x equals to count of even elements, right. We were having x equals to count of even elements, y equals to count of odd elements. Okay, and we were just checking this thing. If x by y is less than equals to a by b, please note that this is not an integer division, right.
Okay, so if this value is correct, means if this inequality is correct, means x by y is less than equals to a by b, then we will consider that the subarray from I to j is valid. We will just increment the answer by 1. At the end we were just returning this answer. So this was actually a order of n square solution. Now we need to optimize this solution, means we need to optimize this inner loop, right? Okay, so let's do one thing. Okay, let's do one thing. Can you tell me the value of x and y first? Okay, you will say that, yeah, for now let's what I will do is, let's rewrite the value of x and y. Let's do one thing. Let's create a array x of length n. This is actually a prefix sum array, right, of length n, where x of i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x of i रिप्रेजेंट कर रहा है number of count of even elements. It represents count of even elements from index वन टू i. ओके, सो बेसिकली x of i एक प्रीफिक्स सम है ओवर इवन एलिमेंट्स. ओके, x of i रिप्रेजेंट्स द काउंट ऑफ इवन एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to i. सिमिलरली हम एक y अरे भी बना लेते हैं n लेंथ की, वेयर y of i क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा काउंट ऑफ ओड एलिमेंट्स, फ्रॉम 1 to i. प्रीफिक्स सम अरे कैलकुलेट कर ली. अब इसको इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर दो. x क्या है एक्चुअली हमारा? आप करंट सब अरे को कंसिडर कर रहे हो, है ना? एक बार करंट सब अरे को कंसिडर कर रहे हो आप, और लेट्स से आपकी जो करंट सब अरे है ये है i to j. करंट सब अरे, किसी एक सब अरे को कंसिडर करते हैं. लेट्स से i to j आपने एक सब अरे ली इधर. अब आप इस सब अरे के लिए वैलिड होने के लिए काउंट ऑफ ओड एलिमेंट्स, काउंट ऑफ एक्चुअली x क्या था आपका? इवन एलिमेंट्स. ओके, सो काउंट ऑफ इवन एलिमेंट्स क्या है इसके लिए? काउंट ऑफ इवेंट्स एलिमेंट है, ये प्रीफिक्स सम अरे से निकाल लेंगे हम. कैसे? x of i माइनस x of नहीं, इधर हम क्या कर रहे हैं ना, बोर मत होना. इधर हम बेसिकली इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और पहले इस एक्सप्रेशन को समझ रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन का हम कुछ कर सकते हैं या नहीं. ओके, सो आपको मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, सच दैट यू इन द लेट्स से इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में, तो आप भी ऐसे डिड्यूस कर पाओ फ्रॉम एक्सप्रेशन से, आप उसको ऑप्टिमाइज कर पाओ. सो बेस से इसको समझा रहा हूँ. ओके, सो आई टू जे एक सब अरे को कंसिडर कर रहे हैं. इसके लिए द काउंट ऑफ इवन एलिमेंट्स क्या होगा? काउंट ऑफ इवन एलिमेंट्स होगा आपका x ऑफ j माइनस x ऑफ i माइनस 1, ये होगा, राइट. और डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ ओड एलिमेंट्स क्या होगा? ये भी प्रीफिक्स हम अरे से निकाल लेंगे, y ऑफ j माइनस y ऑफ j माइनस 1.
ये आपका क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी, यही तो कंडीशन है ना, यही तो कंडीशन है इसकी। अब आ जाते हैं कि इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। अब क्योंकि b पॉजिटिव इंटीजर है तो b को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो b इधर आ जाएगा, इधर से डिनोमिनेटर से चला जाएगा, b को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, x ऑफ j माइनस एक्स ऑफ आई माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू, अब इसको भी, इस डिनोमिनेटर को भी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, राइट, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, a इंटू वाई ऑफ j माइनस वाई ऑफ आई माइनस वन। ओके, अब इसको जे वाले इंडेक्स करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स को एक साइड ले आते हैं और आई वाले को एक साइड ले जाते हैं। सो ये कंडीशन क्या बन गई, एक्स ऑफ जे माइनस ए इंटू वाई ऑफ जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू बी इंटू एक्स ऑफ आई माइनस वन माइनस ए इंटू वाई आई माइनस वन। ओके, सो ये हमारी फाइनल कंडीशन बन गई, ये हमारी फाइनल कंडीशन बन गई। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन हमारी सब अरे फ्रॉम आई टू जे वैलिड है, राइट। अदरवाइज हमारी जो सबस्ट्रिंग है, सब अरे है फ्रॉम आई टू जे वैलिड नहीं होगी अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो। ओके, अब हमारा काम इजी हो गया। हम क्या करते हैं ना कि आप हर एक इंडेक्स के लिए ये वैल्यू अलग से निकाल लो, वैल्यू, इसको वैल्यू ऑफ जे बोल दो। एक आप, मैं क्या कह रहा हूँ, एक वैल्यू एन एक अरे बनाओ और वैल्यू ऑफ आई क्या होगा, वैल्यू ऑफ आई होगा बी इंटू एक्स ऑफ जे। एक्स ऑफ जे आपको पता है ना, हमने ऑलरेडी प्रीफिक्स समरी कैलकुलेट कर ली थी। एक्स ऑफ आई एक्चुअली वैल्यू ऑफ आई निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इंटू एक्स ऑफ आई माइनस ए इंटू वाई ऑफ आई। अब इस कंडीशन को रीराइट करते हैं। ये कंडीशन क्या है कि अगर आपकी सबरे है फ्रॉम आई टू जे, ये वैलिड कब होगी, ये वैलिड होगी इफ योर वैल्यू ऑफ जे इज लेस देन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आई माइनस वन। समझे ना, इस कंडीशन को बस रीराइट किया है। ये वैल्यू क्या है एक्चुअली, वैल्यू ऑफ जे है, ये वैल्यू क्या है एक्चुअली, वैल्यू ऑफ आई माइनस वन है। हाँ, तो अब हमारा सिंपल हो गया काम कि अगर आई ऑफ जे, आई टू जे अगर सब अरे वैलिड है, इसका मतलब वी ऑफ जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू वी ऑफ आई माइनस वन। अब हमारा काम इजी होगा। हम क्या करना है ना, हम इटरेट करेंगे फॉर ईच जे बिलोंग्स टू 1 to n इटरेट करते हैं। ओके, अब इस j के लिए सब अरे, लेट्स से वी वांट टू फाइंड, है ना, इनर लूप में हम क्या करेंगे, फाइंड नंबर ऑफ आई सच दैट v of j is less than equals to v of i minus 1। बेसिकली इससे हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि वी आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ सबरेज आई टू जे विच आर वैलिड, और आई टू जे सबरे वैलिड होने का मतलब क्या है कि v ऑफ j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू v ऑफ i माइनस 1। सो हम इससे क्या फाइंड कर रहे हैं कि हम सारी वैलिड सबरेज फाइंड कर ले रहे हैं विच आर एंडिंग एट j, और आंसर में ये चीज़, ये जो काउंट आएगा द नंबर ऑफ आई सच दैट दिस, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले जितने भी काउंट ऑफ आई हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर
ऑल सब अरेज एंडिंग एट जे, और आंसर में उसको ऐड कर देंगे, राइट। आंसर इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं इनिशियली, और लेट्स से ये जो काउंट हमारे पास काउंट आया है ना, काउंट क्या है, काउंट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस सेम थिंग, नंबर ऑफ आई सच दैट दिस कंडीशन इज ट्रू, और आप इसमें आंसर को अपडेट कर दोगे, आंसर प्लस इक्वल्स टू काउंट, एट द एंड आपके पास आंसर आ जाएगा विच रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ सब अरेज विच आर वैलिड। अब आप पूछोगे कि भाई ये चीज़ मैं कैसे फाइंड करूं फास्ट, राइट। इसके लिए आप क्या करोगे ना, आप एक मान लो आपको क्या करना है कि आप हर एक जे पे इटरेट कर रहे हो, और आपकी वैल्यू अरे में से आपको फाइंड करना है कि कितनी वैल्यूज, कि बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको बस यही फाइंड करना है कि वैल्यू अरे में आपकी कितनी वैल्यूज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी ऑफ जे है, बस आपको यही फाइंड करना है। इसके लिए क्या होता है, जैसे दो मेथड है ना, एक बहुत इजी मेथड होता है, ऑर्डर्ड सेट करके होता है आपका सी प्लस प्लस में, है ना। दूसरा भी जनरल मेथड भी बताऊंगा, वो थोड़ा लेंथी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बट लेट्स फर्स्ट गो विद द इजीएस्ट वन। आपका एक ऑर्डर्ड सेट होता है सी प्लस प्लस में। अब ये ऑर्डर्ड सेट क्या करता है ना, ऑर्डर्ड सेट आप इसमें कुछ कुछ वैल्यूज लेट से आपने इंसर्ट कर दी, 0 1 4 7 9, तो आप ऑर्डर्ड सेट में एक बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनमें से एक फंक्शन होता है एस डॉट ऑर्डर ऑफ की, राइट। एक फंक्शन क्या होता है आपका एस डॉट ऑर्डर ऑफ की, है ना। इसको आप कोई भी वैल्यू आप इसमें डालोगे ना, लेट्स से वी, तो आपकी क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ इंटीजर्स स्ट्रिक्टली लेस देन v, या फिर x ले लो, आप कंफ्यूज ना हो जाओ प्रीवियस अरे से। सो s डॉट ऑर्डर ऑफ x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x डॉट ऑर्डर ऑफ n, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ इंटीजर्स स्ट्रिक्टली लेस देन x। और मान लो आपके पास ये नंबर ऑफ ये आ गया, राइट, लेट्स से आपके पास ये आ गया, ये मान लेते हैं कि एक बार के लिए ये वैल्यू आ गई काउंट, ओके। काउंट इज एक्चुअली, अब आप काउंट कैसे फाइंड करोगे इधर, कि मान लेते हैं हमने ऑलरेडी जितनी भी वैल्यूज हैं, हम क्या करेंगे जैसे जैसे इटरेट कर रहे हैं ना, इस सेट में इंसर्ट करते जाएंगे वैल्यूज, राइट, इस सेट में इटरेट करते जाएंगे, और हमें जल्दी से कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ काउंट। वैल्यू ऑफ काउंट क्या है, ऐसी वैल्यूज जो कि वी ऑफ जे से बड़ी हूं, राइट। सो वो आप कैसे काउंट करोगे, वो आप काउंट करोगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है जे तक, जे उसमें से आप माइनस कर दोगे जो कि स्ट्रिक्टली लेस देन वी ऑफ जे, ऑर्डर ऑफ की वी ऑफ जे। समझे आप इसका मतलब, कि भाई आपको बड़ी वैल्यूज चाहिए थी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए थी, तो आपने क्या किया, टोटल वैल्यूज कितनी है जे माइनस जो इससे स्ट्रिक्टली लेस देन है वो माइनस कर दो, तो आपके पास बची हुई कितनी वैल्यूज बच गई, बची हुई जो वैल्यूज है काउंट है वो क्या है, वो वैल्यूज जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी ऑफ जे है। और ये जो फंक्शन काम करता है ना, ये log ऑफ n में काम करता है, मतलब लोगरिथमिक टाइम में आपको ये आंसर दे देता है। सो आपका अब ये जो काउंट है ये आपको log ऑफ n में मिल गया आपको आंसर, राइट। अब आपको क्योंकि log में आंसर मिल गया log ऑफ n में, तो आपका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n log n, राइट।
सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। अनदर क्या है ना, ये जो ऑर्डर्ड सेट है ये C++ का है। हो सकता है कि आप बाकी लैंग्वेजेस, दूसरी लैंग्वेजेस में भी कोड करते हो। अब एक और तरीका होता है कि आपको बताना है कि करंटली इस वैल्यू से छोटी वैल्यूज़ कितनी है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कंप्रेस, ये अलग, अगर ना समझ में आए तो आप ये इसी को इम्प्लीमेंट कर देना, इसी को यूज़ कर लेना। एक दूसरा मेथड होता है कि आप वैल्यूज़ को कंप्रेस करोगे। जो वैल्यूज़ अरे है n, इसमें आप क्या करता है ना, इसको आपको कंप्रेस करना है, राइट। कंप्रेस ऑल वैल्यूज़, राइट, सच दैट, एक चीज़ आप नोटिस करोगे ना इधर, आपको वैल्यू ऑफ जे की एक्चुअल वैल्यू से मतलब है ही नहीं। आपको बस मतलब है कि ये वैल्यू छोटी है या नहीं बड़ी, छोटी है या बड़ी दूसरी वैल्यू से, राइट। सो आपको बेसिकली ऑर्डर से मतलब है इसका, राइट। एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको बस ऑर्डर से मतलब है कि आप ये पता लगा पाओ कि ये वैल्यू बाकी वैल्यू से छोटी है या बड़ी। तो आप इसको कंप्रेस कर सकते हो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। सो आपको क्या करना है, यूज जे को कंप्रेस ऑल वैल्यूज सच दैट ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज इन all values in this array belongs to 0 to n-1। आप कंप्रेस कर सकते हो। अब कंप्रेस कैसे करना है कि सबसे पहले इसको सॉर्ट कर लो, राइट। सॉर्ट, v को सॉर्ट कर लो। सॉर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सॉर्ट कर लिया ना। अब लेट्स से सॉर्ट करने के बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं। v आपका ये है 0, 100, 200, 4 एंड 1000। n क्या है इधर, n है 5। ओके, सो आप, मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इस वैल्यूज, सारी वैल्यूज़ को आपको कन्वर्ट करना है, कंप्रेस करना है बेसिकली 0 to 4 में। आपको 0 to 4 में कन्वर्ट कर कंप्रेस करना है इसको, सारी वैल्यूज़ ऑफ वी को। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको सॉर्ट कर लो, राइट। सॉर्ट करने के बाद आपका वी कैसा कैसा दिखेगा, सॉर्ट करने के बाद आपका वी दिखेगा 0, 4, 100, 200, 1000। अब आप क्या करोगे, इन सारी वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आप एक नंबर असाइन कर दो, एक वैल्यू असाइन कर दो। सबसे छोटी वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग 0 असाइन कर दो। उसके बाद आप 1 असाइन कर दो, इसको 2, 3, 4, राइट। इसको असाइन कर दो और इसको वापस से ओरिजिनल, अगर अरे में कन्वर्ट करोगे तो ओरिजिनल अरे आपकी क्या होगी, ओरिजिनल विदाउट सॉर्टिंग, वो क्या होगी, 0 की करस्पॉन्डिंग आपकी क्या वैल्यू आई थी, 0 ही आई थी। 100 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आपकी 2 है, 200 के करस्पॉन्डिंग क्या है 3 है, 4 के करस्पॉन्डिंग क्या है 1 है, 1000 के करस्पॉन्डिंग क्या है 4 है। ओके, सो द ओरिजिनल, राइट। सो दिस इज योर ओरिजिनल अरे वी विच यू हैव कंप्रेस्ड। आपने इसको इसमें कंप्रेस कर दिया। आप ऐसे कंप्रेस कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि इसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी होती ना, लेट्स से 4,4 होता, तो उस केस में आप इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वली रखते, राइट, 1,1 ही रखते। सो इससे हमने क्या मेक श्योर किया कि जो सारी वैल्यूज़ हैं वो 0 to n-1 में आ गई हैं। और रिलेटिव ऑर्डर आप कंपेयर करोगे, कोई भी दो वैल्यू अगर पहले, लेट्स से v ऑफ i, पहले अगर मान लेते हैं कि v ऑफ i अगर लेस देन v ऑफ j था फॉर एनी पेयर i को j, अब भी वो कंडीशन वैलिड है, अब भी वो कंडीशन वैलिड है, राइट, क्योंकि हमने सॉर्ट करके इंक्रीमेंटली इनको वैल्यूज असाइन करी हैं।
ओके, सो एक बार आपने कंप्रेस कर दिया, अब आप क्या करोगे, इस पर एक फैनविक ट्री बना लो, राइट। फैनविक ट्री बना लो। फैनविक ट्री में क्या करोगे, फैनविक ट्री आपका स्टोर करेगा, फैनविक ऑफ आई स्टोर करेगा प्रीफिक्स सम ओवर। अब फैनविक ट्री को छोड़ो, एक बार सिंपल और सिंपल रखते हैं इसको, एक प्रीफिक्स सम अरे बना लो। प्रीफिक्स सम अरे, जैसे ही आप आई पे इटरेट कर रहे हो ना, हम ये काउंट फाइंड करना चाह रहे हैं इधर, राइट, काउंट फाइंड करना चाह रहे हैं इधर, तो आप फॉर ईच जे आप ये इटरेट करोगे, फॉर ईच जे बिलोंग्स टू 1 to n, आप इटरेट कर रहे हो, आप एक क्या करोगे, एक प्रीफिक्स समरी लो, राइट, प्रीफिक्स समरी ऑफ लेंथन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीफिक्स ऑफ आई, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स count of values from 0 to i। मतलब आप इसमें वैल्यू, कोई भी वैल्यू ऐड करोगे तो आप प्रीफिक्स ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 0 से आई के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, राइट, जो आपने इसमें ऐड कर दिए हैं प्रीफिक्स समरी में। और आप क्या इंटीजर ऐड करोगे वो अब देखते हैं कि आप इटरेट कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, इटरेट कर रहे हो फॉर ईच आई, फॉर ईच जे फ्रॉम 1 to n, और करंट आपकी वैल्यू है उसके लिए आप फाइंड करना चाह रहे हो कि कितनी वैल्यूज इससे छोटी हैं, मतलब काउंट आपका क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा टोटल जे माइनस प्रीफिक्स ऑफ वी ऑफ जे। वी ऑफ जे क्या था, वी ऑफ जे था कितनी वैल्यूज 0 से आई तक हैं, -1 कर दो इधर, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली लेस देन चाहिए, राइट। वी ऑफ जे -1, इसका मतलब क्या हुआ, प्रीफिक्स ऑफ वी ऑफ जे -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 से वी ऑफ जे -1 तक सारी वैल्यूज का काउंट, कितनी वैल्यूज हैं जो कि 0 से वी ऑफ जे -1 तक हैं, राइट। तो ये आपका अकाउंट मिल गया, ये ऑर्डर ऑफ 1 में मिल गया आपको इन दिस केस। बस आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसको अपडेट करना है, प्रीफिक्स समरी को अपडेट करना है। प्रीफिक्स सम को अपडेट करने के लिए आप क्या करोगे कि आप प्रीफिक्स समरी में ये वैल्यू ऐड करनी है, राइट। ये प्रोसेस करने के बाद आपको काउंट मिल गया, अब आपको इस प्रीफिक्स समरी में ये करंट वैल्यू भी ऐड करनी है, वी ऑफ जे, वी ऑफ जे ऐड करनी, ये कहाँ ऐड होगा, ऑफ कोर्स प्रीफिक्स ऑफ वी ऑफ जे में होगा ऐड, ये इंक्रीमेंट होगा। दूसरा प्रीफिक्स ऑफ वी ऑफ जे +1 में होगा, क्योंकि प्रीफिक्स ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से आई तक, 0 से आई तक कितनी वैल्यूज हैं, राइट, ओके, है ना। तो वी ऑफ जे कहाँ कहाँ ऐड होगा, फॉर ऑल वी जे +1 वी जे +2 अप टू n-1, राइट। सो ये आप अपडेट कर दोगे, बट ये काफ़ी लेंथी काम है, ये ऑर्डर ऑफ n ले लेगा इधर ही, और टोटल टाइम आपका ऑर्डर ऑफ n² हो जाएगा, बट इसलिए आप क्या करोगे, इसको अवॉइड करोगे, राइट। हम एक दूसरा तरीका निकालते हैं फैनविक ट्री की हेल्प से। आप क्या करोगे ना, आप डायरेक्टली इस प्रीफिक्स सम को हटाओ, या आपको प्रीफिक्स सम समझ आने के लिए बोला था मैंने, राइट। इस प्रीफिक्स सम को हटाओ, आप क्या करोगे, फैनविक ट्री पर आते हैं, फैनविक ट्री से इसको फास्ट अपडेट करते हैं।
अब फैनविक ट्री में क्या करोगे ना, ये सारी वैल्यूज आप ऐड करते जाओगे। आप एक काउंट अरे बनाओ। काउंट ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करता है? काउंट ऑफ आई, काउंट ऑफ आई, काउंट ऑफ आई, समझ गए ना? काउंट ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई इंटीजर्स का काउंट क्या है, ये है आपके पास। अब आप फैनविक ट्री से क्या करोगे, आपको काउंट फाइंड करना है। आप कंफ्यूज मत होना इस काउंट से। अगर करंट, इसको कुछ और बोल देते हैं, इसको बोल दो CO5, CO5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? काउंट ऑफ आई, कि आई की फ्रीक्वेंसी, ये ज़्यादा बेटर है, ये वर्ड ज़्यादा बेटर है। फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई। आप फ्रीक्वेंसी ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ आई ऑफ कोर्स। सो आप एक फ्रीक्वेंसी अरे बनाओगे, फ्रीक्वेंसी अरे बनाओगे आप एन लेंथ की, राइट, वेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ आई रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ आई। ओके, सो अभी आपको काउंट फाइंड करना है। काउंट फाइंड करना है इस, तो काउंट क्या होगा आपका? काउंट होगा जे, दैट इज टोटल, माइनस, या फिर आप ऐसे करो, काउंट क्या है आपका? काउंट क्या है? काउंट है द नंबर ऑफ वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी ऑफ जे। वी ऑफ जे से बड़ी वैल्यूज कितनी है, तो उसके लिए आप क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा सम, फ्रीक्वेंसी अरे पर सम, फ्रीक्वेंसी अरे पर सम है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अरे फ्रॉम वी ऑफ जे प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ वी ऑफ जे प्लस वन प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ वी ऑफ जे प्लस टू, जे प्लस थ्री अप टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एन माइनस वन। ओके, सो ये है आपका काउंट। समझ गए ना कि बेसिकली वी ऑफ जे प्लस वी ऑफ जे प्लस वन, वी ऑफ जे प्लस टू अप टू वी ऑफ जे माइनस, वी ऑफ जे माइनस वन। तो इसके काउंट जितने भी होंगे वो हमारा, उनका जो सम होगा वो हमारा काउंट हो जाएगा। बेसिकली काउंट क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन वी ऑफ जे। अब इस चीज़ को आप कैसे करोगे? आप क्या करो, इस फ्रीक्वेंसी अरे को, इस फ्रीक्वेंसी अरे पर फैनविक ट्री लगा दो, तो ये आपका log ऑफ एन टाइम में आपको मिल जाएगा आंसर। log ऑफ एन टाइम में आपको मिल जाएगा सम, राइट? ओके, और आप, अब आपको काउंट मिल गया तो आपको करंट आंसर भी मिल गया जे के लिए। अब आप क्या करोगे, इस फैनविक ट्री को जेथ वैल्यू के लिए आप अपडेट भी कर दोगे। इधर क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यू ऑफ जे आप प्लस प्लस कर दोगे, राइट? और सो यस, दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम इन ऑर्डर ऑफ एन log n टाइम। ये आपको फैनविक, बेसिकली हमने इस पर फैनविक ट्री लगाया है, और आप सबको पता ही है कि हम एक रेंज में सम फाइंड कर सकते हैं फैनविक ट्री की हेल्प से, और अपडेट भी कर सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू को। So this is how we can solve this with the help of Fenwick tree if you are not aware of this ordered set implementation। but ये ordered set implementation काफ़ी easy है, आपको इतना सब सोचना ही नहीं पड़ेगा। ये कंप्रेस करना और फिर कंप्रेस्ड अरे है,
उस पर एक आपको फ्रीक्वेंसी अरे बनाना, देन फ्रीक्वेंसी अरे पर आपको फैनविक ट्री इम्प्लीमेंट करना। ये वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा काम नहीं है, समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा है। ओके, बस आपको फैनविक ट्री आना चाहिए, इतना ही है बस इसमें। So still if you don't know, if you are still hesitant to implement this approach, you can go for this approach, right? Ordered setup directly use कर सकते हो, जो कि आपको log of n टाइम में दे देगा कि तो total it returns the number of integers strictly less than s। और एक बार आपको वो पता लग गया तो आपको काउंट पता लग गया, ultimately you will add it to the answer। So let's also see the code, है ना। कोड में हम सेम यही ऑर्डर्ड सेट वाले इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। कोड काफ़ी इजी और सिंपल है। तो हमने क्या किया है, हमने ये इंपोर्ट कर लिया है ऑर्डर्ड सेट, राइट। अब n इज़ द लेंथ ऑफ दिस नम्स अरे, ऑर्डर्ड सेट हमने डिफाइन कर लिया। अब एक चीज़ आप नोटिस करना कि हम एक सेट जो होता है ना, सेट ओनली स्टोर्स डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, राइट। डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर नहीं करता सेट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेयर ले लेते हैं। जो ऑर्डर्ड सेट बनाया हमने, अगर ओनली लॉन्ग लॉन्ग ले लेते, लेट्स से ओनली इंटीजर ले लेते, तो वो ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज स्टोर करता, बट हमें सारी वैल्यूज चाहिए, राइट। हमें मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज भी स्टोर करवानी है। तो इसके लिए हम पेयर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग कर लेंगे, और पहली वैल्यू होगी एक्चुअल वैल्यू, और दूसरा जो होगा ये इंडेक्स ले लेते हैं, इंडेक्स ऑफ दिस अरे, राइट। सच दैट सारी जो पेयर्स होंगे, सारे पेयर्स वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे अल्टीमेटली, एंड अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू स्टोर ऑल द वैल्यूज। अब इनिशियली आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0,0 इसमें इंसर्ट कर देते हैं, और लेट्स ऑल्सो इनिशियलाइज आंसर इक्वल्स टू 0। अब x और y को भी इनिशियलाइज कर दिया इधर। अब इटरेट करते हैं फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 to n। अब ये देखते हैं कि करंट अगर इंटीजर इवन है तो x को इंक्रीमेंट कर दिया, अदरवाइज y को इंक्रीमेंट कर दिया। अब वैल्यू बताओ मुझे, करंट वैल्यू i के लिए, या आपको पता ही होगा, इधर हमने डिड्यूस किया ही था। वैल्यू क्या होगी, b इंटू एक्स ऑफ जे माइनस ए इंटू वाई ऑफ आई, मीन्स b इंटू एक्स माइनस ए इंटू वाई। ये वैल्यू, करंट वैल्यू पता लग गई। अब हमें पता लगाना है कि इस सेट S में कितनी वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू V हैं। वो कैसे पता लगाओगे, टोटल माइनस वो माइनस कर दो जो कि स्ट्रिक्टली लेस देन V है, राइट। सो S माइनस ऑर्डर ऑफ की V कोमा -1 हमने वही रख लिया कि इंडेक्स हमें क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन चाहिए तो -1 ले लिया इधर। क्यों ले लिया -1, क्योंकि इंडेक्स ऑलवेज जो भी हम असाइन करेंगे ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होंगे ना, तो -1 ले लेते हैं। ये हमें दे देगा कि काउंट ऑफ वैल्यूज दैट आर स्ट्रिक्टली लेस देन v। एक बार वो मिल गया हमें, तो हम आंसर क्या होगा, i माइनस काउंट, और हम s में इंसर्ट भी कर देंगे ये वाली वैल्यू v कोमा i। एट द एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो yes, this is how we can solve this problem. I hope you got the solutions. If you have any doubts, you can ask me in the comments. So let's meet in the next video. Until then, have a nice day. Thank you.